And viewers, on to our top focus now. Prime Minister Narendra Modi has urged Indians to adopt voluntary austerity measures amid rising global oil prices triggered by West Asia tension, aiming to cut fuel imports, conserve foreign exchange and promote a self-reliance. In his recent addresses, he outlined 7 key appeals. Prioritize work from home to reduce commuting, avoid gold purchases for a year, cut petrol and diesel use by opting for public transport, carpooling and EVs, reduce consumption of imported cooking oils, shift from chemical fertilizers to natural farming, prefer Swadeshi over foreign branded products, and minimize non-essential foreign travel along with lavish destination weddings. Framed as a nation-first collective effort. Let's in fact go across to Arzu Seth, my colleague who's reporting live from Delhi. Will get in a sense of how the situation there at petrol pumps currently are. Arzu, if you're connected with us, take us through the situation on the ground. Well, definitely, the Prime Minister has urged the citizen to cut the use of fuel. And in fact, apart from that, he also urged people to promote the work from home culture and also to hold online meetings and also to avoid foreign travels. All these things have been urged amid the conflict or tension that is happening in the world. And right now, I'm present at a petrol pump and will directly go across the public to understand, because we also earlier talked with some of the people, and they have said they will be doing what is in the national interest. On the other side, the people also conscious and worried about why Prime Minister has said something like that. So we'll directly go across the public to understand how they see the Prime Minister appeal. सर, हम लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल जो अपील की है कि फ्यूल को कम इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन मीटिंग करें। प्रधानमंत्री की इस अपील को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से टेंशन चल रही है वर्ल्ड में? उन्होंने जो बोला है ठीक ही बोला है, वो पूरे देश को चला रहे हैं। बाकी देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ज़रूरी काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो आप लोग सहयोग करेंगे? अगर बिल्कुल सहयोग करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ हैं हम। So definitely we can hear the sentiment or what the people has to say, that they will be with the Prime Minister. What the Prime Minister has said, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को बढ़ावा दें ताकि फ्यूल की बचत हो सके, क्योंकि दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं इंडिया में। बाकी आप देशों में देखिए रेट बहुत बढ़ गए। किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील? मेरी नज़र में तो ये सही बात है, क्योंकि जिस तरह की पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए कि ये सही कदम है प्रधानमंत्री जी का। और मैं कहता हूँ कि लोगों को सहयोग करना चाहिए इस बारे में। आप सहयोग करेंगे? जी मैं सहयोग करूँ, मैं खुद ईवी यूज़ करता हूँ। बिल्कुल। See, definitely what this person gentleman has said is a very good thing, that he is using the electric vehicle EV, and people should also move towards the electronic vehicles and also to promote the EV. सर, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, कैसे देखते हैं आपकी? फ्यूल का यूज़ कम करें, फॉरेन ट्रेवल्स ज़्यादा ना करें, गोल्ड ना खरीदें 1 साल तक, कैसे देख रहे हैं इन अपीलों को? मैम बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बिल्कुल अपने देश में जो डॉलर वगैरह वो बचाने के लिए और बाहर के जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सब बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा उन्होंने। हम सब सहयोग कर रहे हैं। तो आपको लगता है इससे जो सुधार है वो होगा, या फिर सिचुएशन जो आगे आने वाली है उससे लड़ने के लिए कंट्री को तैयार किया जा रहा है, आप लोगों को, हम सबको तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल मैम, वो कंट्रोल की जाएगी ना वो सिचुएशन को। अब आने वाली सिचुएशन जो बहुत हो सकता है बुरी भी हो सकती है, तो इसलिए वो पहले से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। Definitely. So, what the Prime Minister has said, and everybody whom we have talked right now, in fact, agreed with what the Prime Minister has said, and also will try to have a conversation with more people. Sir, प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कितना ज़रूरी है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा अगर आप तेल बचाते हैं तो वो भी एक नेशनल इंटरेस्ट होगा, भारत के लिए होगा, देश के लिए होगा। अच्छा, you have a problem. Okay. सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की अपील को? किस बारे में? आज जो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि फ्यूल को कम खर्च करें, फॉरेन ट्रैवल ना करें ज़्यादा, और जिस तरीके से गोल्ड ना खरीदें 1 साल तक, कैसे देख रहे हैं इस अपील को?
हाँ मैडम, ये तो प्रधानमंत्री ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लोगों को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए कुछ। प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है तो कुछ मोटिव होगा इसके पीछे। कोशिश तो करनी चाहिए जहाँ तक हो सके बचत करें अपनी। प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि अगर आप कर सकते हैं तो कार पूलिंग करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए जी। जब जैसे 2 जने इकट्ठे जा रहे हो वो कार पूलिंग अपना कर सकते हैं, इससे ईंधन की बचत होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो मैडम। So definitely what we are getting on ground that people agreed and people support what the Prime Minister had said, and in fact they said that they will try to to do what the Prime Minister had said, and even try to avoid unnecessary travel across country or Right. India. Or just, Across world. Thanks Yeah. for bringing us that report. Let's also go across to Abhishek Singh, who's live from Lucknow outside Sarafa Bazaar. And in fact, Nitesh Shukla is also live from Bhopal. We'll get in a sense first of what's happening in Lucknow. Abhishek, you are there. Have you been able to get in a word from people there? How are they responding to Prime Minister's appeal, and whether they think it is timely that these measures were adopted? Yes, PM Modi has appealed to people that they should not buy gold ornaments for 1 year. And we are in the Sarafa market in a jewelry shop, and we'll learn from them, of course, from the owners and the business persons of the Sarafa market, and also some of the customers are also here. We will learn from them. क्यों सर सोना चांदी खरीदने आए, पीएम तो मना कर रहे हैं? जी बात तो सही है, कल उसका मैंने भाषण सुना। लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आई, क्यों खरीदें क्यों ना खरीदें। हम आम जनता कहाँ तक इसकी गहराई में जा पाएंगे, और ना मुझे इनकी कोई जानकारी, ना हम क्या, हमारे लाखों लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ आवश्यक चीज़ों की खरीदारी करनी ही पड़ेगी भैया। जो वो कह रहे हैं ना कि राष्ट्र के नाम है ये, जो आप नहीं खरीदेंगे। तो ठीक है, वो बात ठीक है, राष्ट्र के नाम क्या चीज़ है, कुछ इसकी जानकारी आम जनता को भी तो हो। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो भी कहते हैं हम लोग उसको मानते हैं, उसकी कोई आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जानकारी मिलेगी क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। खाली सोना ना खरीदना ही एक इसका रास्ता, या कोई और भी चीज़ें हैं क्या, किससे इससे क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसका सार क्या है। सोना खरीदें ना खरीदें वो तो अलग मैटर, क्यों ना खरीदें। वैश्विक संकट की बात कही जा रही थी। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कनेक्ट विथ द ओनर ऑफ द शॉप्स एंड विल लर्न फ्रॉम देम व्हाट is the situation, and is the footfall has gone decreased after the appeal of PM Modi? क्यों लोग कम आने लगे हैं, ग्राहक कम हो गए हैं दुकान में, क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी आह्वान होता है तो निश्चय ही उसका All right, we are getting in that ground report from Lucknow. There are some audio glitches that we have encountered. Let's go to Bhopal, where my colleague Ritesh is reporting from. Ritesh, अब भोपाल में क्या कुछ सिचुएशन है? दिल्ली में लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ सहमति दिखा रहे हैं, लखनऊ में भी गोल्ड शॉप्स में हम जाएं तो फुटफॉल शायद कम हो गया है। वहाँ भोपाल में क्या सिचुएशन है? देखिए, भोपाल में भी यही स्थिति है। नरेंद्र मोदी यदि अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आम जनता बिल्कुल उसकी सहमति जता रही है, चाहे वो ईंधन की बात करें, चाहे सोने की बात करें, या फिर विदेशों में टूर की बात करें, तो जनता अब सहमति जता रही है। और उसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनके इस बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है, या इस पर लगातार राइड आ रही हैं या फिर इनकी बुकिंग आ रही है। इनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। भाई साहब, आप गाड़ी चलाते हैं, अब प्रधानमंत्री ने अपील करी है कि पेट्रोल और डीजल कम से कम उपयोग करें। इसको लेकर कोई राइड में कोई कमी या फिर किसी तरीके से आपके व्यापार पे कोई असर? बिल्कुल पड़ेगा सर। अगर गाड़ी कम डीजल चलाएंगे तो गाड़ी कम चलेगी, और अगर हम कम चलाएंगे तो हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। और सरकार ये चाह रही है तो फिर कुछ रेट बढ़ाए टैक्सी के, हम लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं है ना इसका, हमें तो नुकसान ही होगा। हम गाड़ी कम चलाएंगे तो हमारी इनकम कम होगी ना। आज के टाइम में 18,000 20,000 रुपये गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, आदमी किस तरीके से निकालेगा? अगर ये सब करता रहेगा तो बहुत परेशानी होगी आगे चल के हम लोगों को, जिस तरह से जो हो रहा है।
अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी गाड़ियाँ बहुत दूर दूर भी जाती हैं, तो अभी आपके पास जब से अपील करी है तो ट्रैवल के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पर बुकिंग के लिए? काफ़ी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि 2-4-8 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर जाना नहीं चाह रहा ज़्यादातर। अब जैसे आउट स्टेशन की राइडें बहुत आती थी, लेकिन अभी डिमांड भी कम हो गई है उस तरह से बाहर की राइडों की भी। तो बाहर की राइडों की यदि बात करें तो बाहर की राइडें कम हुई हैं, और कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री की जो अपीलें हैं उसकी लोग सहमति जता रहे हैं। बराबर उसकी सहमति के साथ साथ लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है। टूर बेवजह के जो पेट्रोल डीजल के खर्चे थे वो बंद कर दिए हैं। उसके अलावा टैक्सी ड्राइवर भी, उनसे बात हुई है हमारी, उनके व्यापार पे भी कुछ असर देखने को मिला है। जी Nitesh, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Viewers, that's the situation on the ground, like mixed reactions coming in as far as the situation from across the nation is concerned. In fact, my colleague Shahid Ansari is also live from Mumbai. Shahid, there in Mumbai, how are people responding to Prime Minister's appeal? Whether there's it is evident that the people are adhering to the message that has been sent out. देखिए, जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की है, ये अपील देश के हर उस देशवासी के लिए है जिन्होंने जो इस देश में रहते हैं या इस देश के बारे में सोचते हैं। पीएम मोदी की ये जो सोच रही है, शायद उन्होंने वक्त के पर्दे को जो है चीर के बहुत आगे तक देख लिया है, और यही वजह है कि उन्होंने जिन बातों की तरफ इशारा किया है या जो हिदायतें दी है, उन हिदायतों को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो तैयारी हमें उस वक्त करनी होगी वो अभी से करने की बात उन्होंने की है। हालांकि देखिए, उन्होंने सोना खरीदारी को लेकर और इसके साथ साथ जो है ट्रैवल को लेकर और इसके अलावा खाने के तेल को लेकर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की है कि उनका जो है इस्तेमाल कम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम किया जाए, और इससे जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। हम लोगों से बातचीत करते हैं। पीएम मोदी ने जो अपील की है, इस अपील को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो अभी बोले वो जो ट्रैवल के लिए वर्क फ्रॉम होम। हाँ, कुछ नहीं। अभी हम तो ड्राइवर लोग हैं, हमको तो निकलना ही है बाहर। हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। जैसे उन्होंने कहा है कि लोग जो है ज़्यादा करके जो है ट्रेन से जाएं या वर्क फ्रॉम होम करें, तो उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोग ट्रेन से, फ्यूल की बचत हो जाएगी। इससे अपने देश का ही फायदा है कि बाहर का करेंसी थोड़ा कम चलन कम हो जाएगा, उससे महंगाई भी कम हो जाएगी। ऐसे मोदी जी तो बोले, देखते हैं अभी क्या होता है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो पीएम मोदी की जो अपील रही है उसको लोग किस नज़रिए से देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पीएम मोदी की जो अपील रही है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम, इसके अलावा ट्रैवल के लिए जो है ट्रेन। पीएम मोदी ने जो बात कही है, जो अपील की है, ओके, तो इस बहुत सारे लोग हैं, हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। पीएम मोदी ने जो अपील की है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पीएम मोदी ने जो अपील की है वर्क फ्रॉम होम, देखिए ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं कि जो बोलना नहीं चाहते और शायद वो इसको समझ भी नहीं पाए कि पीएम ने जो बात कही है उसे वो जो है क्या वजह है कि वो इस तरह से उन्होंने अपील की है। लोग शायद समझ नहीं पाए या लोगों को पता नहीं है। हम और भी लोग हैं यहाँ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के पास मौजूद हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जो अपील की है देश से, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें, ट्रैवल के लिए कोशिश करें, कम ट्रैवल करने के लिए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी देखिए सर, कैसा है, वर्क फ्रॉम होम के लिए तो बात सही है, पर जैसे कि हमारा ड्यूटी है जो कि हमें डिपार्टमेंट में घूमना पड़ता है, तो उस रिगार्ड्स में हमको बाहर तो निकलना ही है, उसमें कुछ कह नहीं सकते सर। तो देखिए, उनका कहना सही है एक जगह पे कि उनको अगर देश की स्थिति सुधारनी है तो उन्होंने उनके लेवल पे सही कहा है, पर जो आम जनता जो है, आम जनता उस रिगार्ड में उनके अपने हिसाब से देखती है काम करने के तरीके से। जहाँ फीसिएबल होगा वहाँ वर्क फ्रॉम होम ज़रूर करेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ करना पड़ेगा सर। आप मानते हैं इस चीज़ को कि पीएम ने जो अपील की है कहीं ना कहीं वो बहुत आगे तक उन्होंने देख के पहले से उसकी तैयारी शुरू करने के लिए कहा? जी, उन्होंने आगे कहीं ना कहीं देखा हुआ ऐसा खतरा आने वाला है, जिस हिसाब से उन्होंने देख के इसी कुछ कदम उठाए होंगे सर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह से जो लोग हैं वो हर एक के जो है मिली जुले बातें, पीएम मोदी ने जो बात कही है, सोना कम खरीदें, ट्रैवल कम करें और वर्क फ्रॉम होम करें, खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करें, ये जो 4-5 चीज़ें रही हैं उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली मुझे तो लगता है ये थोड़ा इलेक्शन की वजह से
दबा के रखा था। हाँ। अभी इलेक्शन होने के बाद वो ओपन किया है। जी। शॉर्टेज पहले से था, हाँ। सभी लोगों को मालूम था, लेकिन किसी को ओपनली बताया नहीं जी, गया। जी। अभी उसके ऊपर एक्शन लेने की काम चल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि एक तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है आने वाले दौर की, आने वाले वक्त में परेशानियां कम हो, उससे पहले ही हम तैयार रहें? यस यस यस, वैसे ही होगा, क्योंकि अभी तक का जैसे अपना एक्सपीरियंस है कि जैसे नोटबंदी हो गई, जीएसटी आ गया, वैसे ही ये अपने को थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो सिचुएशन है। जी जी। जितना इंडियन पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो रिक्वायरमेंट है और जितना भी अपना सप्लाई चेन है उसके हिसाब से उतना होता है। तो सुना आपने कि जो लोग हैं वो भी चीज़ों को कुछ न कुछ हद तक समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखिए हमको मिले जो इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहते या वो जानते ही नहीं। लेकिन जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी बातचीत ऐसी है कि अगर हम किसी भी नाजुक हालात की तैयारी पहले से कर लें और पीएम की अपील पर इसका हम साथ दें और हम ये जान लें कि पीएम ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं जो है महसूस किया है उन्होंने, और महसूस करने के बाद उन्होंने देशवासियों से इस बात की अपील की है, तो हम भी क्यों ना जो है उसके साथ तैयारी करें और कदम से कदम मिलाकर चलें। तो इस तरह की बातें जो लोग हैं, पूरे देश के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें समझती है। इसलिए हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। पीएम मोदी की एक अपील रही है, वर्क फ्रॉम होम, सोना कम खरीदें, खाने का तेल कम Minister इस्तेमाल Hardeep करें। Singh Puri, who has given out a statement on the current oil situation in India. Let's listen into that first. Now let me just tell you. Let me. We are 1 minute. We are the uncertainty surrounding the supply disruptions on account of the closure of the Strait of Hormuz, a process that started on 28th February. We are now into 75th day of that. Let me tell you categorically, we have no supply side problems. Today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. All of you live in Delhi or you travel around the country, you must have seen there are no shortages anywhere. Some of my friends tried to say that, oh, some shortage is coming and therefore you should do some buying. That was also short-lived. Today I can tell you that this situation in the last 4 years, there has been no increase in prices. Today we are in a situation, we don't know how long the blockades or counter blockades in the Strait of Hormuz will continue, but I can tell you categorically that today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future, that if this were to continue, we also have to look at what we can do in terms of lifestyle changes. And I think, as I mentioned in the CII session this morning, I warmly welcome the support that the CII corporate executives have given to that call. There are certain activities which we can curtail. It's not that something is going to happen. That's all negative, panic-creating activity. I can tell you, as somebody who's more involved in this, I review the situation every day along with the CMDs of the oil sector for an hour, hour and a half. My next meeting is at 2 o'clock with them. There is absolutely no cause for anxiety, but we should, going forward, we don't know how long this will take, and also be very clear that this prolongation of this is creating a fiscal strain. My oil companies are losing 1,000 crores a day. Their under recoveries are in the tune of nearly 1,98,000. So we will have to start worrying about these things, and in that
We should. Some demand for LPG has come down. It used to be 90,000 metric ton. It has come down to 75. Some of it is because of the temperature. But even otherwise, I think prudent supply and demand side, we have done very well, and I have no reason to believe that we will not do well in the future. But we should, certain activities which can be curtailed without this thing, please listen to what the Prime Minister said, and it's a very visionary statement going forward. We should bear that in mind.